The last question in week 12 is based on the problem of finding possible permutations of a string. But the difference between the normal question and this question is that here you have to find the possible permutations in a sorted order. That is, it is also known as lexicographic order, or it is also known as dictionary order. Okay. So for example, if you have an input like this, so your lexicographic order of the possible permutation should be the letters, should be the strings should start with the letter A, B, C, and ACB, right? And after that they should start with B, BAC, BCA, and after that they should start with C, that is CAB and CBA. So if you can see, we are actually following a dictionary order here, A, B, B, C, C, right? So this is what is known as a lexicographic order. Okay. Now there are possible two solutions. First solution is we are going to apply an algorithm, and I don't think so you have heard about the algorithm, but it dates back to 14th century India. And second possible approach is using a function in STL. So let's go with the first algorithm. So you have many ways to generate all the permutations. Okay. Now one way is to find the next permutation, right, in lexicographic order, if it exists. So now this algorithm, it begins by sorting the sequence in increasing order, okay, which gives it lexicographically minimum permutation, and then you have to repeat advancing to the next permutation as long as one is found. So this algorithm was given by a major mathematician in 14th century India who was known as Narayan Pandita, and their algorithm says that first, you have to find the largest index k such that a of k is less than a of k plus 1. If no such index exists, the permutation is the last permutation. After that, you have to find the largest index L greater than k such that a of k is less than a of L. Then you have to swap the values of a of k with that of a of L. And then you have to reverse the sequence from ak plus 1 up to and including the final element an. So this is how you're going to get the next permutation, which is lexicographically sorted. Now for example, we have a sequence here which consists of numbers 1 2 3 4, and this is already in increasing order. So and our assumption is that the index is 0 based. Okay, so now first is that we have to find the largest index k, right, such that a of k is less than a of k plus 1. So our index will be k of 2, right, this one 0 1 2. Why? Because 3 is placed at an index that satisfy condition of being the largest index that is still less than a of k plus 1, which is 4, right? So this is the reason our k will be equals to 2. After that, we have to find the largest index L greater than k such that a of k is less than, so our L will be 4, L will be 3 obviously, because 4 is greater than 3, right? Matlab 3 is less than 4, so this condition is getting satisfied. A of k means a of 2, a of 2 पर क्या है 3 है, and a of L means a of 3, a of 3 पर है 4, so this is getting satisfied. So L will be 3 and k will be 2. After that you have to swap the values, right? So you are going to swap 3 and 4, so you are going to get a sequence 1 to 4 3, ठीक है? And the last is you have to reverse the sequence from k plus 1 up to and including the final element a of n. So ak plus 1 means up to the index 3, and we don't have as such any element after this, right? So the sequence will remain unchanged, so our final answer will be 1 2 4 3. So this is how we got the next permutation in a lexicographical order. So अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हो, तो इस सीक्वेंस में इनकी थिंकिंग ये कि इस सीक्वेंस में ज़्यादा चेंज नहीं करना है. कहने का मतलब है अगर 1 2 3 4 के बाद आपको 1 2 3 5 चाहिए था, तो आप +1 करके सिर्फ लास्ट डिजिट चेंज करोगे ना. तो जो हम नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेक्सिकोग्राफिकली, उसमें भी यही हो रहा है, राइट? अगर ये देखोगे ABC था, तो नेक्स्ट वाले में ए तो सेम रहा ना, ए तो फिक्स रहा ना, सिर्फ आखिरी के 2 लेटर स्वैप हुए, ACB हुआ. एनीवे जब आपने नेक्स्ट जंप करा तो उसके बाद सीक्वेंसेस चेंज होना स्टार्ट हुए. तो आपको मिनिमल पॉसिबल चेंज करना होगा किसी भी स्ट्रिंग में टू गेट द नेक्स्ट परम्यूटेशन. सो यहाँ पर भी यही थिंकिंग फॉलो हुई है कि यहाँ पे जब पहले 1 2 3 4 था, तो उन्होंने सिर्फ लास्ट के लेटर्स चेंज करे और वो हुआ 1 2 4 3. तो ऐसे करके यू गॉट द नेक्स्ट परम्यूटेशन, राइट?
तो हमारी जो स्ट्रिंग है हमने ABC पास करी एंड देन वी हैव कॉल्ड द सॉर्टेड परम्यूटेशन फंक्शन। सॉर्टेड परम्यूटेशन फंक्शन में हमने साइज कैलकुलेट कर लिया पहले स्ट्रिंग का एंड हमने इस पर क्यू सॉर्ट फंक्शन लगाया क्योंकि हमें स्ट्रिंग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अब क्यू सॉर्ट फंक्शन का यही प्रोटोटाइप होता है। क्यू सॉर्ट फंक्शन एक आपकी इनपुट स्ट्रिंग लेता है, देन नंबर ऑफ जो उसमें वैल्यूज़ हैं इन द एरे, राइट, कैरेक्टर एरे या फिर इंटीजर एरे, जितने भी उसका साइज़ होता है उस एरे का वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद जो एक उसका जो सिंगल बाइट होगा उसका साइज़ लिया जाएगा, ओके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कंपैरेटर फंक्शन यूज़ होता है क्यू सॉर्ट में। अब कंपैरेटर फंक्शन का भी इसका एक फिक्स प्रोटोटाइप है। इसका कंपैरेटर फंक्शन ये प्रोटोटाइप फॉलो करता है, राइट। इसमें ये पॉइंटर बेस्ड कंपैरिजन करता है क्योंकि ये इन प्लेस सॉर्टिंग कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये वॉइड पॉइंटर्स ले लेता है इन्हें एंड आफ्टर दैट आपका जो भी आपने एरे में आप करवा रहे हो सॉर्टिंग, उसके हिसाब से आपको उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये और भी आपके वॉइड पॉइंटर्स थे, तो आपको इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा इन योर कैरेक्टर। और अगर आपका इंटीजर एरे तो इंट हो जाएगा वहाँ पे एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे डीरेफरेंसिंग कर दोगे। एस्ट्रिक का मतलब हमने डीरेफरेंसिंग करी है। अब डीरेफरेंसिंग करने के बाद ये जो भी दो वैल्यू सबट्रैक्ट करके आंसर देगी उसके हिसाब से आपका सॉर्टिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गेट ए नेगेटिव आंसर, राइट, तो इसकी जो रिटर्न वैल्यूज है इसका मतलब ये ऐसे ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है क्योंकि हम इन प्लेस सॉर्टिंग कर रहे हैं एंड जो उसकी रिटर्न वैल्यू रहेगी तो उसका मतलब ये हो जाएगा, अगर लेस देन 0 आती है इन दोनों को सबट्रैक्ट करके तो द एलिमेंट पॉइंटेड टू बाय P1 गोज बिफोर द एलिमेंट पॉइंटेड टू बाय P2। अगर इक्वल टू 0 आता है तो वो इक्वलेंट रहता है और अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो एलिमेंट पॉइंटेड टू बाय P1 गोज आफ्टर द एलिमेंट पॉइंटेड टू बाय P2, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरेटिव फंक्शन हो जाएगा। उसके अलावा हमने एक स्वैप फंक्शन भी बनाया क्योंकि हमें इसमें स्वैपिंग भी करनी है जो हमारा एल्गोरिथम है, तो इसलिए हमने एक स्वैप फंक्शन बना लिया है इसमें। दिस इज गोइंग टू स्वैप द वैल्यूज। आफ्टर दैट हम सॉर्टेड परम्यूटेशन वाले फंक्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमने एक इस फिनिश्ड करके बूलियन फंक्शन बना लिया है जो कि ये देखेगा कि अब हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत है या नहीं, राइट। इनिशियली इट इज़ केप्ट एज फॉल्स एंड वाइल इट इज़ नॉट ट्रू, तो तब पहले तो हम जो हमारा परम्यूटेशन है उसको प्रिंट कर देंगे एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें राइट मोस्ट कैरेक्टर फाइंड करना है विच इज़ स्मॉलर देन इट्स नेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब क्या है, ये लाइन कि हमें वो लार्जेस्ट इंडेक्स फाइंड करना है सच दैट ए के इज़ लेस देन ए के प्लस 1। तो ये हमें ऑब्वियसली राइट साइड से ही मिलेगा, राइट, जो हमारा इधर से ही मिलेगा हमें, है ना। यहाँ से फाइंड करने का तो मतलब नहीं क्योंकि मैंने यही बोला ना कि हमें स्ट्रिंग में मिनिमल चेंजेस करने हैं, राइट। सो इसलिए हमें राइट मोस्ट कैरेक्टर फाइंड करना होगा जो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, ओके, तो इसके लिए उन्होंने ये लूप चलाया है एंड फाइंड करने के लिए। सो अगर हमें ये वाली कंडीशन मिल जाती है जो हम चाह रहे हैं, जो वाली कंडीशन है हमारी अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम इसे ब्रेक कर देंगे एंड इन केस अगर ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर ही नहीं होता, i इक्वल्स टू -1 पहुंच जाता है, इसका मतलब हमारा जो आगे का डेटा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, दैट इज़ वी हैव ऑलरेडी प्रिंटेड द लास्ट परम्यूटेशन। तो जब हम लास्ट परम्यूटेशन प्रिंट कर रहे होंगे तब ये वाला केस आएगा हमारा और तब हम इस फंक्शन को ट्रू करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे जो बूल फंक्शन है। एनीवेज वरना हम एक सील इंडेक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सील इंडेक्स वाली बात यहाँ से आ रही है कि हमें ये फाइंड करना है जो हमारा लार्जेस्ट इंडेक्स है L विच इज़ ग्रेटर देन K। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे सील इंडेक्स करके हमने एक फंक्शन लिया है यहाँ पर, ठीक है। एंड इसमें हम वो स्ट्रिंग पास करेंगे एंड वो जो हमारा कैरेक्टर है फिर उससे आगे का कैरेक्टर हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमें उसके आगे वाला कैरेक्टर चेक करना है, ठीक है। तो जो सील इंडेक्स फंक्शन है, सील इंडेक्स फंक्शन में इनिशियली हमने इसको L ले लिया है और उसके बाद हमने L+1 से लेके H तक चेक करा है जो कि हमने वहाँ से पास करा है उस फंक्शन से एंड देन हमने चेक करा है कि क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो ऐसे करके हमें सील इंडेक्स मिल जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से सील इंडेक्स, ओके। उसके बाद हम स्वैप करेंगे क्योंकि अब हमें वो लार्जेस्ट इंडेक्स मिल चुका है क्योंकि हमें इस एल्गोरिथम में यही करना था कि लार्जेस्ट इंडेक्स L फाइंड करना था और लार्जेस्ट इंडेक्स K फाइंड करना था, ठीक है। तो अब हमने लार्जेस्ट इंडेक्स K और L दोनों फाइंड कर लिया तो अब हम उन्हें स्वैप कर देंगे और स्वैप करने के बाद एनीवेज हम रिवर्स कर देंगे स्ट्रिंग को। रिवर्स का फंक्शन हमारा नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं वैसा हो जाएगा,
So this is how you're going to get all the possible permutations in a lexicographic order. तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो n इंटू एन फैक्टोरियल आएगा, ठीक है. सो इट अप्रॉक्सीमेटली यूजेस 3 comparisons and 1.5 swaps per permutation, राइट. अब जो नेक्स्ट मेथड है उसमें ये है कि हमारे पास एक रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल होता है जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट परम्यूटेशन. तो नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या करता है कि आपका इतना होना चाहिए कि स्ट्रिंग उसमें ऑलरेडी सॉर्टेड रहनी चाहिए, राइट. तो अगर ए बी सी की जगह यहाँ पे सी बी ए है तो पहले तो आप उस पर सॉर्ट फंक्शन लगाओगे, उसे सॉर्ट करोगे एंड उसके बाद आप ऑब्वियसली प्रिंट करते जाओगे परम्यूटेशंस. कब तक? जब तक आपका ये नेक्स्ट परम्यूटेशन वाला फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है. तो वो बार बार आपको जो नेक्स्ट परम्यूटेशन अवेलेबल है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में उसको प्रिंट करवाता जाएगा. इसकी रिटर्न वैल्यू ट्रू रहती है इफ द न्यू परम्यूटेशन इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन द ओल्ड and it gets false the moment the last permutation was reached and the range was reset to first permutation. So इन दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर है. दिस इज द रीज़न कि इनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही जाती है. तो ये भी अबाउट 3 comparisons करता है एंड 1.5 swaps per call. ओके, इट परफॉर्म्स. सो द आउटपुट विल बी लाइक दिस और ऊपर वाले का भी ऐसे ही आउटपुट आएगा. सो दीज आर द 2 methods if you want to find the possible permutations of a string in a sorted order. Okay, then I hope you understood the problem. Thank you.